Let us take this is your line. Okay. If your line makes an angle theta with positive direction of x-axis, a side में नहीं, then tan theta is called slope. Okay. So if a line makes an angle theta with positive direction of x-axis, then tan theta is called its slope. If a line or line segment makes an angle theta with respect to positive direction of x-axis, then tan theta is called slope of the line and denoted by m m. The slope of the line segment joining x1 y1 and x2 y2. Suppose this is point x1 comma y1. This is your point x2 comma y2. Slope of the line segment joining points x1 y1 and x2 y2 कितना होगा? तो मुझे tan थीटा चाहिए, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं to the x-axis, draw perpendicular और यहाँ से draw. ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा. What about this distance क्या होगा? y2 minus y1. ये डिस्टेंस कितना होगा? AC का डिस्टेंस x2 minus x1. तो in ACB right angle triangle, ACB जो right angle triangle, what is the tan theta? Is equal to BC upon तो tan theta is the BC upon AC, which is y2 minus y1 upon x2 minus x1, or you can write y1 minus y2 upon x1 minus x2. दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, both numerator and denominator, you get y1 minus y2 upon x1 minus x2. So slope of the line segment joining points x1 y1 and x2 y2 is y2 minus y1 upon x2 minus x1 लिखो, और y1 minus y2 upon x1 minus x2. ये होता है स्लोप.
नेक्स्ट होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हिच स्लोप्स आर m1 एंड m2. Angle between two lines whose slopes are m1 and m2. दो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ. ये एक लाइन, ये एक लाइन. ठीक है. Let angle between them is the theta. Let us take this is L1, line 1, ये आपका line 2. Angle between them is the theta. How to find out theta? Which slopes are given? L1 का slope given. Slopes given मतलब m1 and m2 given. m1 मतलब tan थीटा. ठीक है. ये थीटा नहीं, ये जितना एंगल करेगा. Let us take L1 makes an angle theta with respect to positive x-axis and L2 makes an angle theta 2 with respect to positive direction of x-axis. तो इसका मतलब आपके पास m1 जो है ना, m1 is the tan of theta 1 and m2 जो है वो आपको tan of theta 2. These two are given. दोनों का स्लोप दिया गया, मतलब ये दोनों का वैल्यू आपके पास है. आपको ये निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट थीटा वैल्यू. थीटा वैल्यू कैसे मिलेगा? ठीक है. तो ये तीनों एंगल में क्या रिलेशन होगा? थीटा 1 गिवन, थीटा 2 गिवन, हाउ टू फाइंड आउट थीटा. ठीक है ना, लाइक दैट. बट थीटा 1 थीटा 2 ऐसे स्लोप फॉर्मेट में दिया गया. tan थीटा 1 tan थीटा 2 गिवन, नॉट थीटा 1 एंड थीटा 2. ठीक है. तो ये तीनों में क्या रिलेशन है? थीटा थीटा 1 थीटा 2 में क्या रिलेशन है? एक्स एक्सिस पे है. एक्स एक्सिस पे है. ये तीनों एंगल में कौन सा रिलेशन बनेगा? ये तीनों में एक कॉमन रिलेशन होता है ना. ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा. अब ये एक्सटर्नल एंगल होगा तो एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ दिस टू एंगल. ये होता है ना. तो आपका थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2, और यू कैन राइट as theta 1 is equal to theta plus theta 2. That implies theta is equal to theta 1 minus theta 2. ये मेरे पास है. तो tan take tan both the sides.
तो tan of theta became tan of theta 1 minus theta 2, tan a minus भी डाल दो, which is tan theta 1 minus tan theta 2 upon 1 plus tan theta 1 into tan theta 2. Okay. That implies tan theta became tan theta 1 की जगह m1 डालेंगे minus m2 upon 1 plus m1 m2. This is the formula of tan theta, or you can write theta is equal to tan inverse of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये वैल्यू जो होगा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन आप ये भी कंसीडर कर सकते हो, ये भी कंसीडर कर सकते हो, ये भी एंगल बिटवीन टू लाइंस होता है। ये थीटा होगा तो ये पाई माइनस थीटा होगा, तो एक एक्यूट होगा तो एक ऑब्ट्यूस होगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए ये आपको नेगेटिव दे देगा, एक्यूट के लिए पॉजिटिव देगा, बट हम कोई भी एंगल कंसीडर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, whether you are calling angle between two straight line is the 30 degree or 150 degree, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टू गेट एक्यूट एंगल, आपको एक्यूट एंगल में बोलना है तो मॉडुलस रखो। ओके, फॉर एक्यूट एंगल थीटा आपका tan थीटा हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस रखेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो आपका जो एंगल होगा वो थीटा होगा, मतलब थीटा जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। सो राइट डाउन
डन। ओके, इसमें कुछ कंडीशंस रखेंगे। If L1 parallel to L2, if line 1 parallel to line 2, तो क्या होगा? ये आपका x एक्सिस, these two lines are parallel lines, तो क्या होगा? दोनों का एंगल सेम होगा ना। ये जितना एंगल करेगा ये उतना ही एंगल करेगा, तो दोनों का स्लोप सेम होना, दोनों का स्लोप सेम होगा। तो आप ऐसे भी देखो, if two lines are parallel to each other, एंगल बिटवीन देम कितना होता है? 0 होता है। तो tan 0 0, इसका मतलब आपका ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, तो m1 इज इक्वल टू m2। तो if L1 parallel to L2, that implies आपका m1 is equal to m2। if L1 perpendicular to L2, परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90 होगा, tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो दिस बिकम 0। ये जब 0 होगा देन आपको मिलेगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर होगा तो m1 इंटू m2 -1, पैरेलल होगा तो m1 इज इक्वल टू m2। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा? 0. 0। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस वाई एक्सिस का स्लोप कितना होता है? वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री करता है, तो एक्स एक्सिस के साथ हम जितना एंगल करते हैं उसका tan वैल्यू निकालना पड़ता है, तो tan 90। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस होगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये जो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ओनली व्हेन m1 m2 डिफाइंड जब होगा तब जाके, if two lines are perpendicular to each other, then product of their slope is the -1 only when both m1 and m2 defined केस में होगा, only when लिखता हूँ मैं, if and only लिख देता हूँ। if and only m1 and m2 both are defined, मतलब अनडिफाइंड केस में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 0 इंटू अनडिफाइंड इज द -1, क्योंकि ये दोनों भी परपेंडिकुलर होता है, तो 0 इंटू अनडिफाइंड -1 ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो if lines are parallel to each other, then product of their slopes are equal। perpendicular होगा तो product of their slopes are -1। x एक्सिस का स्लोप होता है 0, y एक्सिस का स्लोप होगा अनडिफाइंड।
ये हो गया आपका स्लोप। देन करेंगे सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सेंटर by default it is denoted by G। सेंटर्ड क्या होता है? सेंटर्ड क्या होता है? Let this is the triangle ABC. In any triangle ABC, आपका medians are concurrent. In any triangle ABC, medians are concurrent. Median मतलब क्या होता है? वर्टेक्स टू अपोजिट साइड का मिड पॉइंट को जॉइन करेंगे। This is your median. ये भी आपका मीडियन। ठीक है। इन एनी ट्रायंगल medians are concurrent, passes through a fixed point. This point is called centered. In any triangle, medians are concurrent. Concurrent का मतलब होता है passes through one point. Okay? And the concurrent point is called centered and denoted by G. Suppose ABC is a triangle with vertices x1, y1, x2, y2, x3, and median always divides the centered always divides the median in ratio 2:1 internally. Centered always divides the median in ratio
2:1 इंटरनल। ये भी आपका 2 रहेगा, ये 1 रेशियो रहेगा, ये आपका 2 रेशियो, ये 1 रेशियो। if x1 y1 x2 y2 and x3 y3 with the vertices of a triangle, then its centered will be आपका सेंटर्ड हो जाएगा x1 plus x2 plus x3 by 3 कमा y1 plus y2 plus y3 by 3। ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर्ड होगा। जब वर्टिसेस ऐसे दिया जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आपका सेंटर्ड होगा x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3। ये हो गया आपका सेंटर्ड। नोट डाउन। देन नेक्स्ट होता है इन सेंटर। एंड डिनोटेड बाय इन सेंटर कैसे मिलता है? हाउ टू गेट इन सेंटर? इन सेंटर कैसे मिलता है? एंगल बाइसेक्टर्स। In any triangle, angle bisectors are concurrent.
In any triangle, angle bisectors are concurrent. ये भी उसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा. This is called incenter. Okay. In any triangle, internal angle bisectors are concurrent. Okay. And the intersection point is called incenter. And denoted by default इसको I बोला जाता है. इसमें नोट करो. Let ABC be a triangle with vertices x1, y1, x2, y2 and x3, y3. And BC साइड को मैं स्मॉल a मान रहा हूँ, AC साइड को स्मॉल b ले रहा हूँ, AB साइड को स्मॉल c ले रहा हूँ. मतलब A के अपोजिट में स्मॉल a, B के अपोजिट में स्मॉल b, C के अपोजिट में एंगल C के अपोजिट में स्मॉल c. देन इसका कोऑर्डिनेट भी मिलता है. इसका कोऑर्डिनेट होता है a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3. अपोजिट में जा रहा है. a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c. If a x1 comma y1 b x2 comma y2 c x3 comma y3 with the vertices of a triangle ABC with side length BC is equal to small a, AC is equal to small b, and AB is equal to small c. Then in center का जो कोऑर्डिनेट होगा that is a x1 plus b x2 plus c x3 upon a plus b plus c. लाइक y में भी ऐसे होगा a y1 plus b y2 plus c y3 upon a plus b plus c. और एक नोट करो that already you know, internal angle bisector always divides opposite sides in ratio of their conjugative sides. Internal angle bisector always divides its opposite sides in ratio of their conjugative sides. Means आपको क्या मिलेगा? If AD be the angle bisector of triangle ABC, then आपको BD upon CD आपको मिलेगा
AB upon AC. That already you know. Similarly, आपका BE like CE upon AE कितना हो जाएगा? सी साइड में BC अपॉन AB ऐसे होता है। और एक होता है एवरी ट्रायंगल हैज वन इन सेंटर एंड 3 एक्स सेंटर्स। एवरी ट्रायंगल हैज वन इन सेंटर एंड 3 एक्स सेंटर्स। वो क्या होता है? सपोज दिस इज द ट्रायंगल, एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये तीनों भी कंकरेंट होता है एंड दिस इज डिनोटेड बाय I1 और IA। इसको बोलते हैं एक्स सेंटर अपोजिट टू ए। इंटरनल कर देंगे तो क्या होगा? इन सेंटर होगा। एक का इंटरनल, दो का एक्सटर्नल कंकरेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एक्स सेंटर। लाइक दैट ए साइड में भी और एक एक्स सेंटर रहेगा I2, ए साइड में और एक एक्स सेंटर रहेगा I3। तो ऐसे वन इन सेंटर होता है, 3 एक्स सेंटर्स होता है। Every triangle has one in center and 3 एक्स सेंटर्स। ओके, 3 एक्स सेंटर्स होता है। तो इन ट्रायंगल एबीसी internal angle bisector of A and external angle bisectors of B and C are concurrent, and the intersection point is called X center opposite to vertex A and denoted by I1 और IA। ठीक है, तो आपका IA का जो कोऑर्डिनेट आएगा ये हो जाएगा, जस्ट ये जो फॉर्मूला आया था वही फॉर्मूला रहेगा, बट रिप्लेस A आज माइनस A। बस ये हो जाएगा माइनस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C। लाइक दैट Y में भी ऐसे ही होगा, माइनस AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C। A के अपोजिट में जो रहेगा वो माइनस A होगा। लाइक दैट IB क्या मिलेगा? B में माइनस हो जाएगा, AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 अपॉन
a माइनस बी प्लस सी कमा ऐसे ही y में होगा a y1 माइनस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन a माइनस बी प्लस सी, लाइक आई सी के अपोजिट में जो बनेगा। तो ये हो जाएगा ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस बी माइनस सी कमा ऐसे ही y में भी होगा। ये होता है आपका इन सेंटर। व्हाई इट इज कॉल्ड इन सेंटर? यहां से मैं ये जो इन सेंटर मिला ना, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा टू ऑल द साइड्स, तो इसका लेंथ इक्वल होता है। ये तीनों साइड को मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो तीनों का लेंथ इक्वल होता है। टेकिंग दिस वन एज सेंटर यू कैन ड्रॉ वन इन सर्कल। इसको सेंटर एंड लेंथ को रेडियस लेके आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। वो सर्कल क्या होगा, तीनों साइड को टच करेगा इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड। एक इन सर्कल होता है, ये सर्कल का सेंटर ही होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन सेंटर। एक सेंटर में भी ऐसे ही होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इधर से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। वो क्या करेगा, बीसी को इंटरनली टच करेगा, AB साइड AB एंड साइड AC को एक्सटर्नली टच करेगा। So every triangle has one in circle and 3 X circles. कोई भी ट्रायंगल के लिए 4 सर्कल्स बनता है, एक इन सर्कल होता है, 4 एक्स सर्कल्स होता है। ये नोट डाउन कर लो।
हाउ विल फाइंड द, आपको दिया जाएगा ना आपका साइड, तीनों वर्टेक्सेस दिया जाएगा तो आप साइड का लेंथ निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला डालो, एक सेंटर मिल जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट इज द ऑर्थो सेंटर। एंड बेसिकली डिनोटेड बाय एच। कुछ बुक्स में वो दिया जाता है तो आपको देखना पड़ेगा। ऑर्थो सेंटर बेसिकली डिनोटेड बाय एच। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? हाउ टू गेट ऑर्थो सेंटर? In any triangle, altitudes are concurrent. Okay. In any triangle, altitudes are concurrent, and the concurrent point is called orthocenter. मतलब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा टू द ऑपोजिट साइड्स। ऐसे तीनों वर्टिसेस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द ऑपोजिट साइड्स। ये लेट ये आपका परपेंडिकुलर। In any triangle, altitudes are concurrent, and the intersection point is called orthocenter, and denoted by H। तो कुछ बुक्स में ये S दिया गया, सॉरी O दिया गया, तो आप देख लेना, ऐसा ये नहीं। तो हाउ टू गेट ऑर्थो सेंटर, इसके लिए भी एक फार्मूला है, बट दैट फार्मूला नॉट एप्लीकेबल। इट इज x1 y1 at x2 y2
x3 y3. Let us take this angle is the angle A. This is your angle B. This one angle C. Let ABC be a triangle. With vertices x1 y1, x2 y2, x3 y3, and angle BAC is the angle A, ABC is the angle B, BC is the angle C. Then आपका ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होगा, दिस इज x1 tan A plus x2 tan B plus x3 tan C upon tan A plus tan B plus tan C, कमा y में भी ऐसे होगा y1 tan A plus y2 tan B plus y3 tan C upon tan A plus tan B plus tan C. दिस इज द फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला ऐसे यूज नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि सिर्फ वर्टिसेस देने से भी यू कैन फाइंड आउट योर ऑर्थो सेंटर. सिर्फ वर्टिसेस दिया जाएगा भी ऑर्थो सेंटर यू कैन फाइंड आउट, तो एंगल का कोई जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूले के लिए ऐसे दिया गया. इफ हाउ टू फाइंड आउट ऑर्थो सेंटर, कैसे डिफरेंट मेथड टू फाइंड आउट ऑर्थो सेंटर. तो आप यूज करो, आपका एडी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बीसी. एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, तो ए एच भी परपेंडिकुलर टू बीसी होगा. मैं एच का कोऑर्डिनेट को एक्स कमा वाई ले रहा हूं, ठीक है. ये वर्टेक्स से ए कोऑर्डिनेट गिवन, बी का भी कोऑर्डिनेट गिवन, सी का भी कोऑर्डिनेट गिवन, तो आपका एच का स्लोप मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एंड बीसी का स्लोप मिल जाएगा, ये नोन हो जाएगा. बीसी का स्लोप नोन, एबी का स्लोप नोन, एसी का स्लोप भी नोन. अननोन सिर्फ एक्स एंड वाई, बाकी आप स्लोप यूज करके निकाल सकते हो. आज इफ एच विद द ऑर्थो सेंटर, उसी लिख देता हूं, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन आपका ए एच परपेंडिकुलर, मतलब एक्चुअली क्या होता है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, दैट इंप्लाइज ए एच भी परपेंडिकुलर टू बीसी हो जाएगा. तो स्लोप ऑफ ए एच इंटू स्लोप ऑफ बीसी इक्वल टू -1 आएगा. इसमें आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा. सिमिलरली आपका स्लोप ऑफ बी एच इंटू स्लोप ऑफ एसी, वो भी -1 आएगा. इसमें और एक इक्वेशन आ जाएगा. देन सॉल्व कर दो एक्स एंड इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, solve coordinate of ortho center.
This is the procedure you have to follow to find out orthocenter. ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं, बट कहीं पे ये फॉर्मेट में कोई कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, आप टू रिमेम्बर, बट वर्किंग के टाइम पर हम ऐसे करेंगे। ये समझा? इससे ये भी नोट डाउन। डन। ओके, नेक्स्ट होता है सर्कम सेंटर। And basically denoted by O. How to get circumcenter?
this is the triangle. In any triangle, perpendicular bisector of sides are concurrent. साइड को बाइसेक्ट करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. साइड को बाइसेक्ट करो, फिर इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. तो नॉट नेसेसरी वो वर्टेक्स में पास करेगा, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है. ऐसे और ऐसे ही है. राइट. परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, बाइसेक्ट करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. जरूर नहीं कि मतलब इसमें वर्टेक्स में पास करेगा. जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, नहीं तो इक्विलेटरल होता है, तब वर्टेक्स में पास कर जाता है. and denoted by O. What is called circumcenter? क्योंकि इस यहाँ पे क्या होता है, OA डिस्टेंस जितना होगा OB डिस्टेंस उतना होगा, OC डिस्टेंस भी उतना होगा. तो टेकिंग this one at the center and OA length or OB length or OC length as radius, you can draw one circle. एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो. That circle is called circumcircle. ऐसे एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो. This circle is called circumcircle. ये आपका in any triangle perpendicular bisectors of sides are concurrent. Perpendicular bisector of sides are concurrent, and the concurrent point is called circumcenter. And denoted by O. कुछ बुक्स में S भी दिया गया. ठीक है. तो if this angle is the A, this one B, this one C, coordinate of A vertex is the x1, y1, इसका आपका x2, y2, ये आपका x3, y3. लाइक ऑर्थोसेंटर, इसका भी फॉर्मूला होता है. O का कोऑर्डिनेट होता है x1 sin 2a, उधर tan a था, इसमें होगा sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a
प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, कमा वाई में भी ऐसे ही होगा, y1 साइन टू ए प्लस y2 साइन टू बी प्लस y3 साइन टू सी अपॉन साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। ऐसे होता है। okay? ऐसे होता है। बट इसका वर्किंग के टाइम पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इतने सारे मतलब एंगल के साथ वर्टेक्सेस का भी जरूरत नहीं। इफ ओनली वर्टेक्सेस गिवन आल्सो यू कैन फाइंड आउट आपका ऑर्थो सर्कम सेंटर भी आप निकाल सकते हो। ओके, if O be the first one, if O be the circumcenter of triangle ABC, then आपको OA distance is equal to OB distance equal to OC distance होता है। तो इसको आप OA equal to OB ले लो, एक इक्वेशन मिल जाएगा, OB equal to OC ले लो और एक इक्वेशन मिल जाएगा, सिंप्लीफाई कर दो, you'll get your circumcenter। तो take OA is equal to OB, मतलब ये तीनों वर्टेसेस दिया गया, एबीसी दिया गया, मैं इसको x, y मान रहा हूं, तो OA इक्वल टू OB ले लिया, तो you'll get one इक्वेशन। सिमिलरली OA इक्वल टू OC ले सकते हो, नहीं तो OB इज इक्वल टू OC ले लो और एक इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों को सिंप्लीफाई कर दो। आफ्टर सिम तो यूजिंग 1 and 2 you can find out coordinate of circumcenter, ये भी हम निकाल सकते हैं। ओके, और ऐसे भी कर सकते हैं। आपको BC दिया गया तो OD D पॉइंट मिल जाएगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D पॉइंट मिला, तो नाउ OD का स्लोप BC का स्लोप, OD परपेंडिकुलर टू BC, तो स्लोप ऑफ OD इनटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1 होगा। सेकंड वर्किंग पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ BC, let us take D। now आपका क्या होगा, OD परपेंडिकुलर टू BC, that implies slope of OD into slope of BC। मैं जहां पे M मार्क करता हूं that is slope is equal to -1। इधर से इक्वेशन मिलेगा, let this midpoint is the E। similarly slope of OE into slope of SC, ये भी आपको -1 दे देगा। ये दोनों को सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई 1 and 2, को सिंप्लीफाई कर दो, you'll get your circumcenter। ओके, आइदर इसके साथ जाओ नहीं तो इसके साथ जाओ, ये कोई जरूरत नहीं, बट आपको कहीं ना कहीं मतलब ऐसा फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन आएगा तो देन आपको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज
Data. Done. Okay. Do some notes. In any triangle, O, G, H are collinear. Collinear मतलब lies on a line, and G divides, इस हिसाब से रहेगा O then G then H, then G divides the segment
joining O and H in ratio 1:2 internally. ऐसे रहेगा, ये O, ये G, ये H, ऐसे तीनों एक लाइन के ऊपर रहेंगे. OG1 GH2 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा, कोई भी ट्रायंगल के लिए. सेकेंड, in an equilateral triangle, O G H I, सर्कमसेंटर वो क्या है? सर्कमसेंटर, ये आपका सेंटर्ड, ये आपका ऑर्थोसेंटर. सर्कमसेंटर, centered, orthocenter and incenter are one point. ये चारों एक ही पॉइंट हो जाएगा, मतलब जहां पे इंसेंटर मिलेगा उधर ही सर्कमसेंटर मिलेगा, ऑर्थोसेंटर मिलेगा, आपको सेंटर्ड भी will get same. In an equilateral triangle, O, G, H, I are one point. Yeah. In a right angle triangle, ऑर्थोसेंटर कहां पे रहेगा? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल आपका ऑर्थोसेंटर कहां पे होगा? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, right angle at B, the ऑर्थोसेंटर, यही आपका ऑर्थोसेंटर होगा. ऑर्थोसेंटर का डेफिनेशन क्या बोलता है? हम वर्टाइसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां पे मेट करेगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर. तो ये आपका ऑर्थोसेंटर होगा. इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ऑर्थोसेंटर इज एट बी. यहाँ पे आपका ऑर्थोसेंटर मिलेगा. सर्कमसेंटर कहां पे मिलेगा? And circumcenter is the midpoint of hypotenuse. इसका मिड पॉइंट होगा सर्कमसेंटर, क्योंकि आप जब ट्रायंगल बनाओगे ना, ये जब ट्रायंगल बनता है एसी आपका डायमीटर हो जाता है, क्योंकि सर्कमफरेंस में आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो एसी द डायमीटर, तो मिड पॉइंट ऑफ एसी होगा आपका सेंटर. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, and then orthocenter is at B and circumcenter is the midpoint of its hypotenuse.
if 3 points are collinear, तब क्या होता है? If 3 points A, B, C are collinear, then क्या होगा? How to test? How to know 3 points are collinear or not? हम इसको मान के चलेंगे कि लेट 3 पॉइंट्स में आपको क्या मिलता है? ट्रायंगल मिलता है. If they are collinear, then their area will be 0. If 3 points ABC are collinear, then area of triangle ABC will be 0. और ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C collinear. सपोज ये दिस इज योर एक्स एक्सिस. ये कुछ तो एंगल करेगा, तो AB सेगमेंट जितना एंगल करेगा AC सेगमेंट वही एंगल करेगा. तो AB का स्लोप, BC का स्लोप और AC का स्लोप तीनों इक्वल होना चाहिए. और स्लोप ऑफ AB सेम एज स्लोप ऑफ BC सेम एज स्लोप ऑफ AC. आप कोई भी दो ले लो, ये दोनों रखो, नहीं तो ये दोनों रखो, नहीं तो ये दोनों रखो, एनी टू. ठीक है. तो दिस इज द बेस्ट मेथड रादर देन दिस. इस ये लेंथी होता है, तो इसके साथ मत जाओ. गो फॉर स्लोप मेथड. इफ 3 points are collinear, then slope of any 2 points is same as slope of other 2 points. ये सब नोट कर लो. Done. Do these questions.
What happened? First one correct. Second one also correct. ठीक है, वही डिस्कस करते हैं। तो आपका रेक्टेंगल का ये जो वर्टेक्सेस दिया गया इन ऑर्डर दिया गया, फोर्थ वर्टेक्स पूछ रहा है। This is your rectangle. Let A, it is given 4,1, B 7,4, C 13,-2। आप चेक कर सकते हो whether it is a rectangle or not। रेक्टेंगल होने के लिए ये परपेंडिकुलर जरूरी होना है। इसका स्लोप चेक करो, AB का स्लोप कितना होगा, 1 - 4 -3 अपॉन 4 - 7, ये भी -3। इसका स्लोप जो है 1। इसका स्लोप चेक करो, 4 - 2 6 upon 7 - 13 -6, तो दिस इज -1। तो डेफिनेट इन दोनों का प्रोडक्ट -1 मिला, तो रेक्टेंगल होगा। अब ये पूछ रहा है कि डी का वर्टेक्स क्या होगा। ठीक है, लेट डी वर्टेक्स ऑफ डी तो x, y। तो इफ इट इज रेक्टेंगल देन BD का मिड पॉइंट जो होगा, BD और SC क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। both will be bisect each other। तो मिड पॉइंट ऑफ SC is equal to midpoint of BD। SC का मिड पॉइंट क्या होगा, 4 + 13/2, 17/2, 1 - 2/2, -1/2। मिड पॉइंट ऑफ BD कितना होगा, x + 7/2, y + 4/2। अब दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, that implies x + 7/2 is equal to 7/2, 17/2। implies x हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, x is equal to 10। सिमिलरली दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होगा, y + 4/2 is the -1/2, that implies y is equal to -5। so this is the correct answer। चाहो तो आप एक नोट बना सकते हो, फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि सॉरी पैरेललोग्राम बनाओ, क्योंकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम के अंदर आ जाएगा। You can make it note, if x1 y1 x2 y2 x3 y3 and x4 y4 are the vertices of a parallelogram, suppose these three given, how to find out fourth vertex, then आप x4 लिख सकते हो x1 + x3 - x2।
x1 plus x3 minus x2, and y4 you will get y1 plus y3 minus y2. तो सीधा you will get 4 plus 13 minus 7. तो x कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 4 plus 13 minus 7 and y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 minus 2 minus 4. चेक करो आ गया. बाकी सेकंड वन आपका एक लाइन दिया गया. Find the ratio in which the line 3x plus y is equal to 9 divides the line segment joining 1 3 comma 2 7. Let us take this is the line. What is your line? 3x plus y minus 9 equal to 0. इधर एक पॉइंट 1,3 और एक पॉइंट 2,7. ये ए ये बी. ये बोल रहा है कि लाइन ए बी सेगमेंट को कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा. ओके, let this is the P. Let point P divides AB segment in ratio k is to 1 ratio internally. तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? P का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2 into k. रेशियो फॉर्मूला डालेंगे, डिवीजन फॉर्मूला डालेंगे. 2 into k plus 1 into 3 upon k plus 1 comma 2k into 7 मतलब 7k plus 1 into 3. Sorry, first one 1 x coordinate k into 2 plus 1 into 1 अपन k plus 1 and y coordinate होगा 7 into k plus 1 into 3 अपन. अब जो P पॉइंट होगा ये P पॉइंट है लाइन के ऊपर है. अब P पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई कर जाएगा. P पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा. दैट इंप्लाइज सेटिस्फाई करेगा मतलब x एंड y का वैल्यू, ये जो मुझे P का पॉइंट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल रहा है ना, इसको मैं लाइन के ऊपर यूज करूंगा तो यू विल गेट 0. Then 3 into x coordinate. X coordinate is the 2k plus 1 upon k plus 1 plus y. Y is the 7k plus 3 upon k plus 1 minus 9 is equal to 0, or you can write equal 9. जो भी करो. तो k plus 1 LCM हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6k plus 3 plus 7k plus 3 is equal to 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9k plus 9 तो 7 13k minus 9k 4k is equal to 3. तो k हो जाएगा 3/4. मुझे k is to 1 रेशियो ये चाहिए, तो 3/4 is to 1 that is 3:4 रेशियो में डिवाइड करेगा. ओके, तो 3:4 बोलो, 4:3 बोलो, दैट आल्सो राइट. इसके लिए भी एक नोट कर लो, डायरेक्टली यू विल गेट योर आंसर. On the line L divides the line segment joining x1 y1 and x2 y2 in ratio
L1 is to L2, सॉरी माइनस L1 is to L2, यही रेशियो में हमेशा डिवाइड करता है, माइनस L1 is to, इसका मतलब क्या है? ये जो क्वेश्चन था आपका प्रीवियस एग्जांपल देखो, L1 मतलब क्या करोगे, एक पॉइंट को लाइन के ऊपर यूज करोगे, L2 मतलब सेकंड पॉइंट को लाइन के ऊपर यूज करोगे। आपका लाइन का इक्वेशन क्या था? आपका लाइन का इक्वेशन क्या था? 3x + y - 9 = 0। पॉइंट्स क्या था? 1, 3, 2, 7। L1 का मतलब क्या होगा? 1 पॉइंट को इसमें डालेंगे, ठीक है, तो कितना आ रहा है? 3 × 1 + 3 - 9 which is -3। व्हाट इज L2? सेकंड पॉइंट को लाइन के ऊपर डाल दो, 3 × 2 + y, y की जगह 7 - 9, आंसर क्या होगा? -L1/L2, दैट इज 3:4। ये रेशियो मिला था ना, डायरेक्टली आप ये निकाल सकते हो। ओके, आज तो टाइम हो गया, बाकी आप दोनों और 2 क्वेश्चन ऐसे ही करो, नेक्स्ट टाइम बताना। डन? Can I stop now? Yes, sir. Okay, thank you. Bye. Thank you, sir.